जैसे we all know that if we divide a number 15 by, let's say, some other number 6, okay, what we get is, you know if we divide it, it is actually a quotient which is going to be 2, and this is going to be your quotient, and then what you get as a remainder is 3, isn't it? यही आएगा. Yes, sir. और अगर हम कोई दूसरा नंबर लें, ऐसे मान लो, तो इस केस में भी क्वोशंट तो हमारा 2 ही आया, बट रिमाइंडर कम्स आउट एज 0. तो देर इज अ वेरी एलिगेंट वे ऑफ, और जिस नंबर को हम डिवाइड कर रहे होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ डिविडेंड. वी ऑल नो दैट, DIVIDENT, DND, and what we divide by is called as a divisor. तो ये चारों जो टर्म्स हैं, डिविडेंड, डिवाइजर, quotient and remainder, they're kind of related in a certain way. How? So if we call it like, if you have a number which is the dividend, that can be written as a product of divisor with the quotient, and if you add the remainder to it, you get these both sides are equal then. And you can look at in both of the cases up above, that if you look at 15, so 15 can be written as your divisor, which was 6, multiplied by the quotient, which was 2, plus the remainder, which was 3 in the first case. And in the second case, 12 is 6 times 2 plus a remainder 0. ठीक है ना? तो हर नंबर को इस तरीके से एक्सप्रेस किया जा सकता है. इट इज पॉसिबल, especially when you have Yes, sir. especially when you have a case where the remainder comes out to be 0. What we say is that this dividend is actually a multiple of your divisor. Okay, sir. है ना? सिमिलरली जो क्वोशंट भी होता है, उसको भी हम ये बोल सकते हैं कि उस जैसे 6 है और 2 है, इफ यू सी इन दिस केस 12 is a multiple of 6 and 12 is also a multiple of the quotient 2. Yes, sir. आप किसी भी ऐसे नंबर के केस में वेरीफाई कर सकते हैं, when you get a 0 as a remainder, that जो quotient और डिवाइजर होते हैं, दोनों का ही मल्टीपल होता है ये डिविडेंड, राइट? अब एलजेब्रा Yes, में sir. क्या होता है? एलजेब्रा, लाइक आई मीन, नाउ सिंस वी, this is just a fundamental in mathematics which we know for so long. अब हमारा एक्सप्रेशंस देखते हैं. जैसे हमारा 2x² प्लस 4x एक एक्सप्रेशन है, पॉलिनोमियल. जैसे यहाँ पे हमारा एक डिविडेंड था, और यू कुड कॉल इट एज अ डिविडेंड, और इस डिविडेंड को यू डिवाइड बाय समथिंग लाइक, लेट्स से, x, एंड दिस इज योर डिवाइजर. आपने इससे इसको डिवाइड किया, तो व्हाट विल हैपन? यू वुड फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट with writing like this. This is your dividend. You want to divide by x. So ultimately what you are doing is इसका रेसिप्रोकल ही कर रहे हो, क्योंकि ये डिवाइड कर रहा है. तो what you are actually doing is plus 4x into 1 over x. Division is the same as product of the reciprocal, and this x will come down distribute itself with the two terms. तो यहाँ पे आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लग जाएगा 2x², क्योंकि ये वैसा एक चीज और पहले, यानी कम्यूटेटिव कर सकते हैं. सो व्हाट आई कैन राइट इट एज इस 1 over x को पहले लिख सकता हूँ. सो दिस इज पॉसिबल, एंड देन आई कैन यूज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. Yeah, this is also possible. And what you will see is, अब मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो I would get ये एक पावर इससे कट जाएगी, and I get 2x.
and also in this case 4. So what I actually realize, or what we actually realize is case में when you divide this polynomial with x, all the individual terms were perfectly divisible by the dividend, the divisor. And what you are left with this is your quotient value. Yeah. So I mean it is almost like the second case which you have over here. So what you can write is, and I am having a bad marker time. I think I have one more which I can use over here. Just give me a sec. Sir, can we do this using long division method? लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी कर सकते हैं, आएंगे उस पे भी. We'll be coming to that in a bit. So basically what I can write it is 2x square plus 4x, which is your dividend, can be written as x, which is your divisor, times 2x plus 4. और इस केस में जो हमारा रिमाइंडर आया दैट इज 0. Yeah. So exactly the way we were able to divide, I can also divide, but it's just that division in in polynomials by some other polynomial which is in this case x. तो ये भी एक polynomial ही है आपके लिए देखा जाए तो, x is also a polynomial. उससे डिवाइड किया तो इंडिविजुअली हमने उन टर्म्स को ऐसे डिवीजन किया, and what we noticed is that all the individual terms were perfectly divisible and we get a remainder as 0. But what would a situation like this look like? अगर ऊपर वाला एग्जाम्पल देखें तो ऐसा यहाँ पे सिचुएशन कब आ सकता है? So for that you can imagine, let's say a different, a slightly different version of it, which could be your px is 2x square plus 4x plus 5, let's say, and you are again dividing by, this is your polynomial and you are dividing by x. And Sir, this is the px is always the divisor, right? px is your dividend. Okay, sir. ये पॉलिनोमियल इज योर डिविडेंड, और इसको हम किसी दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड कर रहे हैं, और जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसका आप ये मान लीजिए ऑर्डर या डिग्री जिसको बोलते हैं, दैट इज स्मॉलर देन द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल. भाई नंबर छोटा होगा, उसके ऑर्डर कम होगा, तभी आप डिवाइड कर पाएंगे, अदरवाइज भी कर सकते हैं, उसमें सिर्फ रिमाइंडर बचेगा. But in this case, what we are doing is we are dividing this by x, let's say, just to give you an example. And again, if you do the division, like follow the same steps, so what we will get is 2x square plus 4x plus 5 divided by x, which means 2x square plus 4x plus 5 multiply by 1 over x, which also means 2, and I can commutative 1 over x of 2x square plus 4x plus 5, and then I can do distributive and write it as 2x square over x plus 4x over x and 5 over x. So what we realize is, इसकी next step है कि इस केस में, ये फर्स्ट केस में यू हैव अ परफेक्ट डिवीजन, सेकेंड केस में भी यू हैव अ परफेक्ट डिवीजन बिकॉज x and x गेट्स कैंसल्ड, एंड थर्ड में ऐसा नहीं हो पाता है, एंड यू हैव इज अ टर्म विच इज 5 over x. तो what we realize is, in this case, is situation is similar to what we have over here, and what we can write is कि अगर 5 से 5 को डिवाइड करेंगे x, तो बेसिकली यू आर नॉट गेटिंग अ कंप्लीट डिवीजन. तो हाउ वी राइट इज योर डिविडेंड विच इज 2x square plus 4x
plus 5 which was here is a product of your divisor which is x times ये जो पार्ट है जो परफेक्टली डिवाइड हो गया है दैट इज योर कोशेंट एंड what you're left with over here is your remainder. बट ये बहुत ही मैंने सिंपल एग्जांपल लिया है. आई मीन यू विल नॉट ऑलवेज हैव कि आपको ऐसे यहां पर 2x स्क्वायर है और नीचे सिर्फ x से डिवाइड करना पड़ रहा है. देयर मे बी सिचुएशन वेयर द फैक्ट द डिवाइजर कुड बी समवॉट डिफरेंट, More than one term. more than one term. So divisor can be somewhat x minus 2 or x plus 2. अब x minus 2 x plus 2 होगा तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि इससे डिवाइड कैसे करूं. तो उसके लिए हमारे पास जो तरीका है जिसको हम बोलते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड. जैसे मैथ अरिथमेटिक के अंदर लॉन्ग डिवीजन होता है ऐसे एलजेब्रा के अंदर भी लॉन्ग डिवीजन होता है. एंड दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड कि हाउ डू वी डिवाइड अ पॉलिनोमियल बाय अनदर पॉलिनोमियल. तो अल्टीमेटली दिस इज आल्सो अ पॉलिनोमियल, है ना. So let's get to that. So a situation could be, let's say, you have a polynomial px, okay, and that px is, again, let me take this simple one only, 4x plus 5 to prove the long division method, and we want to divide it by another which we call it as gx. So your divisor is some polynomial like maybe 2x plus maybe 4, let's say. ये आपका डिविडेंड है, ये आपका पॉलिनोमियल सॉरी डिवाइजर है. एंड द वे वी एंटिसिपेट इज कि हमारे जो पॉलिनोमियल जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं उसकी डिग्री इज ऑलवेज ग्रेटर देन द डिग्री ऑफ द डिवाइजर. ये हमेशा एक लेवल ऊपर या 2 लेवल ऊपर आपको मिलेगा. इट कुड बी ए क्यूबिक पॉलिनोमियल, इट कुड बी ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी हो सकता है जिसकी डिग्री 4 हो सकती है. तो अब इनका डिवीजन अगर आपको करना है तो हाउ डू वी गो अबाउट डूइंग इट. तो इसमें यू फॉलो द सेम ओल्ड मेथड वेर यू कीप द डिविडेंड अंडर दिस लाइन like this, and you keep the divisor around here, and before you put it you always have to arrange them in decreasing power of x. जैसे यहाँ power of x, highest power of x in the divisor would be kept, either highest power in the dividend would be kept followed by the next higher power and so on. कभी भी उल्टा नहीं करेंगे या mix and match नहीं करेंगे. You would not write it as 4x plus 2x square plus 5. That would be incorrect. इससे आपके results could be incorrect. So always keep it in the descending order. Now how we do the rest of the process of long division in algebra is basically आप क्या करते हो, इस जो भी dividend है उसका फर्स्ट टर्म और इसका फर्स्ट टर्म डिवाइजर का फर्स्ट टर्म इनको कंपेयर करते हो. या एंड व्हेन यू डू अ कंपैरिजन यू ट्राई एंड डिवाइड टू ऑफ देम, यानी आप इस टर्म को इससे डिवाइड करते हो टू सी व्हाट इज द कोशेंट यू गेट. तो 2x स्क्वायर को 2x से डिवाइड करेंगे तो कोशेंट क्या आएगा. यस X. x आएगा ना. Yes, sir. तो वो x जो है यहां लिखा जाएगा. एंड एज ए नेक्स्ट स्टेप व्हाट वी डू इज इस कोशेंट का जो टर्म वैल्यू है उसको आप इस पूरे डिवाइजर से मल्टीप्लाई करते हो एंड वॉट एवर यू गेट यू राइट इट बिलो दिस एक्सप्रेशन. यानी x को 2x plus 4 से मल्टीप्लाई करेंगे so that would give you x into 2x plus 4, जिसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो you get 2x square plus 4x. तो ये मेंटली भी किया जा सकता है, ऐसा नहीं कि ये
मेंटली नहीं किया जा सकता। x टाइम्स 2x प्लस 4 इज 2x स्क्वायर प्लस 4x, इजंट इट? सो व्हाट यू डू इज 2x स्क्वायर को x स्क्वायर जो टर्म है वो x स्क्वायर के राइट नीचे लिखा जाएगा, और जो नेक्स्ट है 4x वो इस x के टर्म के नीचे लिखा जाएगा। सो दैट वी हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट कि ये जो टर्म है हम अकॉर्डिंगली द मैचिंग पावर्स के नीचे ही अरेंज करते हैं। एंड व्हाट यू डू आफ्टर दिस इज आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो जैसे आपको पता You है change the sign. सब्ट्रैक्शन में हम लोग जो नीचे एक्सप्रेशन दिया हुआ है उसके टर्म्स के साइन चेंज कर देते हैं एंड देन वी सब्ट्रैक्ट इट। सो 2x स्क्वायर और ये हो गया माइनस 2x स्क्वायर, तो नाउ यू हैव टू ऐड देम। सो 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर गिव्स यू अ 0 एंड 4x प्लस ऑफ माइनस 4x, ये जो माइनस नेगेटिव साइन है इज विद 4x नाउ, so positive 4x minus 4x again is a 0, and once you are able to get this तो इसका मतलब आपने इसका subtraction कर लिया and whatever is the next term available उसको नीचे लेके आ जाते हैं, right? अब इससे क्या पता चला कि ये जो 5 है हमारा बचा अब यहाँ पे। Now at this point we again evaluate, एक चीज evaluate करनी होती है कि ये जो एक्सप्रेशन यहां पे आया क्या इसकी डिग्री जो आपके डिवाइजर है उसकी डिग्री से कम है। अगर डिग्री कम है तो आवर कैलकुलेशन स्टॉप्स, फिर ये स्टेप्स आगे नहीं रिपीट करिए जाते। Sir, I didn't understand when to stop. ओके, सो जैसे ये 5 है, 5 इज ए कांस्टेंट, राइट? 5 इज ए कांस्टेंट, इसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है। इसका मतलब कांस्टेंट की डिग्री क्या होती है? 0. डिग्री इज 0। और इस डिवाइजर की डिग्री क्या है? इट हैज x, तो x की पावर 1, तो इसकी डिग्री सो व्हाट वी डू ए कंपैरिजन इज इफ डिग्री ऑफ डिवाइजर is greater than degree of remainder, जो नीचे रिमाइंडर बचा ये आपका रिमाइंडर है। हर स्टेप में यहां पे रिमाइंडर होगा। अभी ऐसे भी देखेंगे जिसमें मल्टीपल टाइम्स वी आर एबल टू डू इट, सो डोंट वरी अबाउट दैट कि ऐसे ही एक स्टेप में खत्म हो गया। इट वाज अ सिंपल एग्जांपल। सो इफ द डिग्री ऑफ द डिवाइजर is greater than the degree of the remainder, we stop. So this is the criteria when you stop. अगर डिग्री दोनों की बराबर है तो भी हम स्टेप्स करते हैं, वी कंटिन्यू। और अगर डिग्री डिविजर की यानी रिमाइंडर की डिग्री ज्यादा बड़ी है तो भी हम स्टेप्स करते हैं। सो बेसिकली व्हाट वी मीन टू से इज अगर डिग्री ऑफ रिमाइंडर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द डिग्री ऑफ द डिवाइजर तब तक तो आपको काम करना है। जैसे ही डिग्री ऑफ रिमाइंडर छोटी हो गई उससे एक छोटी हो जाती है तो भी हम मान लेते हैं क्योंकि एक ही छोटी है, 1 से 0 एक ही छोटा है। यू वुड नेवर गेट कि ये डिग्री 2 है और रिमाइंडर की डिग्री 0 हो गई, क्योंकि 2 से पहले एक स्टेप हो चुका हो जिसमें डिग्री रिमाइंडर की 1 आएगी एंड वी वुड हैव स्टॉप्ड ओवर देयर। आप बात समझ रहे हैं मेरी? यस सर पर मुझे एक चीज समझ नहीं आई, आपने शुरू में 2x स्क्वायर बाई 2x क्यों किया? मतलब मुझे कुछ समझ नहीं। ओके, सो दैट्स द फर्स्ट स्टेप इटसेल्फ, यू नो, कि हम जो पॉलिनोमियल जो डिविडेंड होता है उसका जो सबसे लार्जेस्ट पावर वाला टर्म, भाई डिवीजन कैसे स्टार्ट करते हैं? यू नो, लेट्स से आपके पास 15 है जिसको आप 6 से डिवाइड कर रहे हो, से फॉर एग्जांपल। तो आप क्या कर रहे हैं? 15 को 6 से डिवाइड कर रहे हो एंड आई कुड पॉसिबली राइट इट एज, यू नो, 12 प्लस 3 यू नीड टू डिवाइड बाय 6। ठीक है, मेरी जस्ट bear with me. So what I am doing is I am first dividing 12 by 6 to get a 2
एंड देन डिवाइडिंग 3/6 जिसमें मुझे एक रिमाइंडर मिल रहा है। तो आई एम एक्चुअली डिवाइडिंग द लार्जर टर्म फर्स्ट। पहले मैंने उसके कितने मल्टीपल्स उसमें अकोमोडेट हो सकते हैं वो वाला टर्म लिख दिया। 6 के 2 मल्टीपल्स कैन बी अकोमोडेटेड इन ए 15, तो दैट मेक्स इट 12 प्लस वट एवर इज रिमेनिंग इज आई राइट इट आफ्टर दैट। तो उसी तरीके से इसमें भी स्टेप्स, आई मीन एनालॉजी इज व्हाट आई एम गिविंग। द हाईएस्ट पावर में ही आप मैक्सिमम मल्टीपल्स ढूंढ सकते हो। मैं द होल पर्पस इज दैट। अगर आप 6 5 से डिवाइड करोगे तो यू वुड नॉट गेट मल्टीपल्स एनी ओके सर, टर्म। तो हमें कोई ऐसा मतलब वी नीड टू फाइंड आउट अ नंबर, फाइंड आउट सच अ नंबर व्हिच व्हेन मल्टीप्लाइड विद हियर 2x + 4 विल गिव अस 2x²। करेक्ट। सो इस टर्म को इसके फर्स्ट टर्म से डिवाइड करके वट एवर नंबर वी गेट एक्चुअली इज द फर्स्ट वैल्यू इन द कोशेंट। जैसे जैसे यहां पर 2 आया, जब इस 12 को इस 6 से डिवाइड किया तो आई गेट ए 2, दैट इज माय फर्स्ट नंबर इन द कोशेंट, जो यहां पे मैंने x निकाल के रखा है। इन दोनों के डिवीजन से तो x ही आएगा ना। ये 2 इससे कट गया, ये x इसकी पावर को कम कर देगा। व्हाट आई एम लेफ्ट विद इज x ओनली। यस सर। ठीक है ना? यस। Anybody else has any question around this? So stopping criteria is important to understand कि जैसे ही जो रिमाइंडर होता है उसमें डिग्री इज कम्स बिलो देन द डिग्री इन दिस, तो अब हमारा स्टेप्स रुक जाते हैं और जो भी नीचे बचा होता है उसको हम रिमाइंडर बोलते हैं। ये आपका कोशेंट हो जाता है, ये आपका डिवाइजर है ही, एंड दिस इज द डिविडेंड एनीवेज। तो अगेन इससे क्या हुआ, जो हमने इससे पहले जो एग्जांपल्स लिए थे उसमें वी वर एबल टू राइट अ पॉलिनोमियल px which is in this case 2x square plus 4x plus 5 as a product of divisor which is 2x plus 4 times the quotient which is x in this case plus remainder which is 5 in this case। तो हमने फिर से इस पॉलिनोमियल को उसके डिवाइजर, कोशेंट और रिमाइंडर के टर्म्स में लिख दिया। So this is what we call as a एक एग्जांपल जिसको एक थ्योरम के पॉइंट से भी स्पेसिफाई करते हैं, where we say that it is nothing but a remainder theorem। ये रिमाइंडर थ्योरम है कि आप एक पॉलिनोमियल को किसी ऐसी पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं जिसकी डिग्री इससे कम है, then what you can always express is this polynomial in terms of the divisor, the quotient and the remainder। so इसका एक जनरल फॉर्म जिसको बोलते हैं is px is a polynomial of degree 1 or greater। ये px is जिसकी डिग्री is greater than or equal to 1। जब इसको when you divide it with another polynomial gx जिसकी डिग्री is 1, so what you get is you can get a quotient qx plus a remainder r which can also have which can also be an expression in x। यहाँ पे वो x के terms में नहीं आया, is a different story, but you can always write a relation like this where your polynomial is nothing but a product of a divisor times its quotient plus a remainder, and this is what actually the remainder theorem stands for। तो आपको ऐसे एग्जांपल एक और मैं दे सकता हूं, जैसे द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल कैन बी मे बी 3 डिग्री की हो सकता था, प्लस 4x² प्लस 5x प्लस 6, राइट। तो द फर्स्ट जो पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री 1 से बड़ी है, वी आर सेटिस्फाइंग। और अगर इसको हम किसी एक एक्सप्रेशन, एक डिवाइजर जिसकी डिग्री 1 है, लेट्स से x प्लस 5, इससे डिवाइड करते हैं, दिस इज योर gx, दिस इज योर px। तो अब इन दोनों का डिवीजन करेंगे तो क्या आएगा,
लेट्स सी, यहीं पे कर सकते हैं. लेट्स डू दिस ओवर हियर. 2x cube plus 4x square plus 5x plus 6, and you're dividing it with x plus 5. तो जब x plus 5, तो आपने ये तो देखा दोनों को हमने सही से अरेंज किया हुआ है, that is there. अब नेक्स्ट स्टेप इज कि दोनों के फर्स्ट टर्म्स जो भी हाईएस्ट पावर टर्म्स हैं उनको एक बार डिवाइड करके देखा जाए कि भाई कोशेंट में पहली चीज क्या आ जाएगी. सो दैट मीन्स आई वुड टेक दिस 2x क्यूब and divide it by simple x over here, and what I get is क्या आएगा? Square on in quotient. Can you repeat? 2 square, we will write it in the quotient. 2 square. 2x square. Okay, so it would be 2x square. So that is going to come over here. Sir, not अब 2x square, only x square. why x square only? फिर 2 भी तो बचेगा. हमने Oh पूरे yes, टर्म sir. उठाया Yes, sir. है. Yes, sir. Yes, sir. I got it. We just don't take the variable, we take the whole term. और यहाँ भी जो भी है इस x के साथ 2 भी हो सकता था, 4 भी हो सकता था, 5 भी हो सकता था, कुछ भी हो सकता था. So whatever is the quotient we write it over here. फिर इस quotient को इस पूरे इससे मल्टीप्लाई करेंगे. So that means मेंटली अगर आप करना की प्रैक्टिस करेंगे that would be great. तो इसका आएगा 2x square into x would be 2x cube. तो x cube टर्म है तो x cube के नीचे, फिर 2x square plus 5 would give me 5 into 2 gives me a 10 x square. x square आया तो यहाँ लिखा जाएगा plus 10x square. ऑलराइट, फिर नेगेटिव नेगेटिव दोनों को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये जो एक जैसा बन जाता है फर्स्ट स्टेप, तो इसको हम ऐसे कट भी कर देते हैं. कई बार हम ऐसे भी लिख देते हैं कि ये दोनों कट गए क्योंकि साइन उल्टा हो गया तो वो कट गए. व्हाट यू हैव इज 4x स्क्वायर माइनस 10x स्क्वायर. तो 4 माइनस 10, so that would be a negative of 6x स्क्वायर. तो ये तो सिर्फ और सिर्फ इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पे आया. देन जैसे नंबर्स के केस में भी हम बोरो करते हैं, वी बोरो द नेक्स्ट फर्स्ट थिंग अवेलेबल. तो एक ही चीज को बोरो करते हैं, वी डू नॉट कैरी द होल थिंग डाउन क्योंकि वो होल थिंग डिवीजन होगा भी नहीं एक साथ. सो व्हाट वी डू इज वी कैरी द नेक्स्ट टर्म एंड देन रिपीट द स्टेप कि भाई इसकी डिग्री इससे ज्यादा है. अगर डिग्री ज्यादा है तो वी रिपीट द स्टेप. जैसे यहाँ पे देखा था तो डिग्री इसकी ज्यादा है क्योंकि इट इज स्क्वायर, तो डिग्री इज 2, इसकी 1, सो स्क्वायर इज ग्रेटर 2 इज ग्रेटर देन 1. तो अगेन वी टेक दिस माइनस 6x स्क्वायर और इसको x से डिवाइड करते हैं एंड वॉट एवर यू गेट, जो कि इस केस में होगा क्या आएगा? 6x. माइनस 6x. Minus 6x. माइनस 6x. ओ माइनस 6x यहाँ पे इसके साथ ऐड हो जाएगा. बेसिकली आई एम एडिंग अनदर टर्म टू द कोशेंट. तो ये माइनस 6x नाउ विल बी मल्टीप्लाइड विद दिस होल थिंग जैसे यहाँ पे किया था. तो माइनस 6x इंटू एक्स प्लस 5 and I can directly write it down as minus 6x into x would be minus 6x square plus ये क्योंकि minus 6x है और ये 5 है into 5, so that would be negative 30x. अब आप खुद ही देखिए जब इनका सब्ट्रैक्शन करूंगा तो जो ये साइन है उनको मैं रिवर्स कर रहा हूं. जैसे यहाँ पॉजिटिव साइन थे, सॉरी, तो आई शुड से कि जो सिंबल्स होते हैं उनको रिवर्स करते हैं. इट्स नॉट लाइक पुटिंग माइनसेस ओवर हियर, इट्स जस्ट दैट व्हाटएवर आर द साइन ऑफ दीस टर्म्स वी रिवर्स देम. सेम वे जैसे अब यहाँ पे नेगेटिव साइन है तो आई वुड रिवर्स देम एंड दैट वे ये कैंसिल हो गया बिकॉज अ प्लस 6x स्क्वायर एंड अ माइनस 6x स्क्वायर वुड कैंसिल ईच अदर and a 30x plus 5x would add up to give 35x, and this comes down after this.
अभी भी आप देखो डिग्री, फिर कंपैरिजन होगा इस स्टेप पे कि डिग्री दोनों की जो रिमाइंडर है उसकी डिग्री इससे छोटी है या बराबर है या ज्यादा है, तो इट इज एक्चुअली सेम। हमने सेम पे भी बोला था कि वी वुड स्टिल कंटिन्यू, क्योंकि जब तक छोटी नहीं हो जाएगी तब तक नहीं रुकेंगे। सो आई वुड स्टिल कंटिन्यू, दैट मीन्स 35 इसका जो फर्स्ट टर्म है, दिस इज माय न्यू डिविडेंड नाउ। इसको ऐसे मानना है कि अब इसका डिवीजन इससे करना है। तो सेम वे जो इसमें लार्जेस्ट पावर टर्म है उसको उठा के इसके लार्जेस्ट पावर टर्म से डिवाइड करेंगे एंड देन यू गेट अ 35, और वो दैट गेट्स एडेड टू द क्वोशंट। तो ये लॉन्ग डिवीजन चल रहा है, जैसे लॉन्ग डिवीजन में करते थे, इवन वी सॉ दिस इन स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स में। जब हम स्क्वायर रूट्स निकाल रहे थे तो कुछ स्टेप्स ऐसी तरीके से फॉलो कर रहे थे, एंड वी यूज्ड टू कॉल इट एज अ लॉन्ग डिवीजन मेथड ऑफ फाइंडिंग स्क्वायर रूट। सो प्रीटी मच लाइक along the same lines we are following steps over here. तो 35 into x plus 5 gives me 35 into x plus 5. इसका रिजल्ट मैं सीधा लिख सकता हूँ 35x plus 35 into 5 is 175, and reversing the sign ये gets cancelled, and minus 175 plus 6, minus 175 plus 6 would be minus 169. आप देख लीजिए इसकी डिग्री इज 0 क्योंकि इट्स अ कांस्टेंट वैल्यू, 169 नेगेटिव इज अ कांस्टेंट वैल्यू, और ऊपर ये x plus 5 है, तो इसकी डिग्री अब छोटी हो गई डिवाइजर से, तो दैट इज द प्लेस वेयर आई वुड स्टॉप, एंड आई वुड राइट नाउ यू कॉलिंग इट एज अ रिमाइंडर थ्योरम कि मेरा जो px है दैट मीन्स 2x क्यूब प्लस 4x square plus 5x plus 6 can be written as a product of my divisor which is x plus 5 which is my gx, यानी ये px हो गया, ये gx हो गया, into qx which is my value ऊपर 2x square minus 6x plus 35 plus my remainder which is negative 169. So this is my qx and this is my rx. So I am able to express it in terms of quotient and remainder using the long division method. तो ये जो long division method है, this is what we actually call as the remainder theorem, as I already told you. और इसकी मदद से आप रिमाइंडर निकाल सकते हो कि रिमाइंडर क्या आएगा जब एक पॉलिनोमियल दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड की जाती है। सो इन दिस केस द रिमाइंडर इज नेगेटिव 169. इन द प्रीवियस केस आई थिंक इट वाज 5, कहीं खो गया, एनीवेज, बट दैट्स हाउ यू फाइंड अ रिमाइंडर। तो इस टेक्निक को यूज करके you can divide two polynomials and get a remainder and a quotient, and the questions can be around this only कि इस polynomial को इससे divide कीजिए using long division method, या and find the remainder in it, and you know what is the quotient you get, remainder क्या आता है, ये सारी चीजें निकाल सकते हो। Sir, after this, do we write the remainder or do we write like the answer? Like, should we express it like just by writing the remainder or by writing the remainder theory? It really depends on what the question asks. Like let's say if I were to give you the questions किस तरीके के हैं, Sir, if it just comes solve, like solve and solve, that's it. Divide this polynomial by another polynomial. So we use a long division method, right, to divide it, and we say that इसका remainder is what you get. So basically saying कि find the remainder, they would explicitly ask you to find the remainder. तो आप ये method करके बताएंगे and then you'll find कि ये remainder है. And there is, by the way, another way of finding the remainder आपको इसी के लिए अगर आपको remainder निकालना है तो there is another way where x plus 5 को अगर आप 0 कर देते हैं तो that happens at for a value x equals to -5. तो ये जो -5 वैल्यू है
इसको अगर आप इस पॉलिनोमियल के अंदर रखेंगे यू वुड अगेन गेट -169, यानी अगेन जो डिवाइजर है उसको आप इक्वेट करिए 0 के for whatever value of x, that value of x, if you substitute or if you calculate the value of the polynomial px for that value of x, the value of the polynomial will also be equal to the remainder. So that is another way of finding out the remainder. जैसे इस केस में 2 into -5 क्यूब, पहला टर्म आपका ये हो गया, प्लस 4 into -5 square, that is the second term, plus 5 into -5 plus 6. एक वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं इससे, अगर आपको गलती हो गई हो कहीं तो आपको पता चल. सो दिस इज 5 क्यूब इज 125 विद इन माइनस साइन, -125 into 2 is -250. This is 5 square into 4, so 25 into 4 is actually a positive 100. And this is 5 into 5 gives you -25 plus 6, minus 250 plus 100 is -150, -150 आ गया, and -25 plus 6, so that actually adds up to -169 also. तो यानी दोनों तरीके से आप रिमाइंडर निकाल सकते हैं. वन इज, आप बोलोगे ये आसान है, इसी को करते हैं, but you may be explicitly asked to do this also. This can be अगर नहीं दिया है तो you can find out the remainder using this method also, wherein you set up the divisor as equal to 0, or for whatever value that divisor is 0, we use that value to evaluate the value of px. So what we did over here is we did p of -5, हमने p of -5 निकाला है, और p of -5 is actually in this case the remainder. Okay? Sir, but why are you equating x plus 5 is equal to 0? Like, why 0? Why 0? Yes, sir. ये एक तरीका ही है, और तो मैं आपको क्या बताऊं कि why am I doing it? Okay, कि -5 डिवाइजर को 0 करने का क्या रीजन है, डिवाइजर को 0 करने के पीछे क्या रीजन है. अगर मैं इसको 0 करूंगा तो आई गेट अ वैल्यू ऑफ x. आई थिंक द होल पॉइंट इज, इसमें एक स्टेप आगे जो मैं आपको बताऊंगा इज कि इसी टेक्निक को यूज करके आप ये भी पता लगा सकते हो कि जब भी ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके, सो दिस इज एक्चुअली दैट थिंग, लाइक हमने, इफ यू रिमेंबर, हमने शुरू में बोला था कि एक ऐसा when we were trying to find out the value of a polynomial, तो हमने बोला था value of a polynomial can be found out at any point, right? हमने बोला था you can find it out for any point. तो हमने एक वैल्यू ऐसी ढूंढी है जिस पे polynomial की कुछ वैल्यू आ रही है, तो this actually evaluates to the remainder for when you divide by that. तो यानी जब जिस चीज से आप डिवाइड कर रहे हो उस एक्सप्रेशन को अगर आप 0 करते हो, उस एक्सप्रेशन के 0 करने पे जो वैल्यू ऑफ x आती है, दैट एक्चुअली इज द सेम एज द रिमाइंडर यू वुड गेट व्हेन यू डिवाइड दैट पर्टिकुलर पॉलिनोमियल बाय x इक्वल्स टू व्हाटएवर दैट वैल्यू वाज. तो ये एक प्रूफ ही है, ये मान लीजिए कि दिस इज सम टेक्निक बाय विच यू हैव बीन एबल टू इवैल्यूएट इट. कहीं सिचुएशन में क्या होगा कि व्हेन टू पॉलिनोमियल्स आर परफेक्टली डिविजिबल, जैसे हमने एक्सप्रेशन देखे थे, एक 2x² प्लस 3x, इसको डिवाइड बाय x किया था, तो बेसिकली व्हाट आई, इफ यू अंडरस्टैंड, दिस इज परफेक्टली डिविजिबल. तो इसका मतलब है कि ये जो टर्म है x इक्वल्स टू, अगर आप इसको 0 के बराबर रखेंगे तो दैट इज एक्चुअली x इक्वल्स टू 0. That means x equal to 0 पे इसकी वैल्यू itself comes out to be 0, तभी ये perfectly divisible है. यानी हम इसी को आगे यूज करेंगे. It's basically you can say necessary truth जो find out हुई है, टेक्निक्स के थ्रू find out किए हैं. I mean there is no
particular reason I can I can think of right now. Maybe I'll try and find out कि इसको zero क्यों किया जाता है. But you can say कि this is additionally a way by which you are able to figure out the value of a remainder for any expression or a polynomial when you divide. Okay, sir. ठीक है. I'll still research and see if I can find out a good reason कि ऐसा क्यों किया जाता है. All right, guys. So इस पे based, I think I have shared with you a worksheet, and I'll see if I can mark some questions in it which are relevant to the remainder theorem. But this technique is very important. पूछे जाएंगे direct इस पे भी question, या at least remainder निकालना would be something which should be expected out of you. तो you have, we'll discuss this one a little bit further. इसमें आगे भी हैं इससे related, तो but the long division is something you should get familiarized and start practicing stuff around it. ठीक है? Yes. All right, guys. I'll see you Thank around you. in next class then.